Hare Krishna. Hare Krishna to all devotees. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। Give me that kapcha. This one? That kapcha. This one? That kapcha. Another kapcha. Red kapcha. And there is. This one? And क्या बोलते हैं उसको? Spray, spray. Sanitizer. तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है क्या? Start. I welcome all the devotees for attending today's session. So, आपका सैनिटाइजर से ना special water. दोनों अगर वाईफाई रहेगा तो स्लो स्पीड स्लो हो जाएगा। मोबाइल यूज कर रहा है वो भी यूज कर रहा है तो सब लोग So I hope you are able to hear me. यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। So today is very auspicious day of Gopashtami. Hari Bol. Also today is disappearance day of many great acharyas like Srinivas Acharya, Gadadhar Das Goswami and Dhananjay Pandit. So today is the disappearance day of these three great acharyas, and also today is very auspicious occasion of Gopashtami. So Lord Krishna went for the herding the cows first time today. So before today, Krishna used to take care of the calves. So Krishna's name was Vatsapal. Krishna was taking care of the calves because Krishna's age was less than 5, and therefore Krishna was not given the responsibility of taking care of the elderly cows. But in this particular day, Krishna reached uh, uh, 5 years, means Shoishav and then Pogondo. So first 5 years called Shoishav, second 5 years called 5 to 10 years called Pogondo. So Krishna entered into Poganda Leela, and so because Krishna entered into Poganda Leela, so Krishna approached his father to get the responsibility of the elderly cows. Why? Because if he received the responsibility of elderly cows, then he can go little far to little far from his home. So currently Krishna was herding the cows, and therefore he used to go around his home. So the first 3 years Krishna was in Gokul.
So that Gokul is in Mahaban. So another name of Mahaban is Brihadban. So in Vrindavan there is 12 forest. In the 12 forest, 7 forest is in the eastern side of Yamuna, and 5 forest is on the western side of Jamuna. So in the eastern side of the Jamuna, Krishna is the presiding deity of the eastern side of Yamuna, where there is a 7 forest. Madhuban, then Talban, then Bahulaban, then Kumudban, then Kamyaban, then Vrindavan, 5, Madhuban, then Talban, then Kumudban, then Bahulaban, then Vrindavan, then Kamyaban. 6 and 7 is Bhandirban. So the 7 born on the eastern side of Yamuna, and the western side of Yamuna is there is 5 forests. First is Bhadraban, then Bhandirban, then Belban, then Lauhaban, and last is Brihadban or Mahaban or Gokul, where Krishna appear in the home of Nanda and Yashoda. So in Gokul, Krishna have performed 3-4 important pastimes. So first pastime was Krishna killed Putana. That is the first pastime. Putana, killing Putana. Then Trinavarta. Trinavarta means jo wind. Trinavarta. Third is Sakatashur. Fourth is Damodar Lila. So fourth is Damodar Lila. So after Damodar Lila, Krishna, because so many demons were attacking, so Nanda Maharaj was planning to leave the place, Gokul, and come to Nandagaon. So Nandagaon there is a hill named Nandishwar Parvat, and in that hill there is a curse of one rishi. Any demons who will come in that hill, they will fall dead. So Nanda Maharaj was thinking that if we establish our village on the top of that hill, then no demon can attack. They are dear Krishna. So in between Mahaban and Nandagaon there is Govardhan. In between Mahaban and Nandagaon there is Mahaban. So Nandagaon is opposite side of Jamuna. So they has to cross Yamuna and go through the different forests, and they stayed for 3 more years in some other place in journey towards Nandagaon. So they stayed in Chhattigara, where ISKCON temple is currently situated in Vrindavan. So they stayed another 3 years in Chhattigara and some other place in Vrindavan. So that place is called also Raman Reti. Very beautiful place is there in Vrindavan. So Srila Prabhupada established Krishna Balaram temple because Krishna and Balaram used to Really hot room. Thank you. मेरी थ्रोट थोड़ा सा ये हो गया, तो आज मैंने 2 क्लास दिया और कल धुआंधार कीर्तन हुआ रात को। आज भी सीनियर बैच की क्लास में बहुत जोरदार कीर्तन हुआ। तो मृदंग बजा रहे थे, तो थोड़ा सा तो मेरे को काढ़ा पीना पड़ेगा। तो
हाँ, तो कृष्णा they stayed in Ramanrati for 3 more years. So 3 years, 4 months in Gokul, 3 years, 4 months in Chatikara. So how many years? 6 years, 8 months. And then another 6 year Krishna stayed in Nandagaon. So total Krishna stayed uh, 12 years, 6 months. uh, 12 years, 6 months. it is actually 11 year 8 months. So less than 6 year Krishna stayed in Nandagaon. And then Krishna went to Mathura. So uh, so this pastime took place when Krishna reached his 5th year. So that time Krishna might be in Chatigara or in Ramanreti. So Krishna asked permission, and then Nanda Maharaj was thinking that Krishna is very small, and how can Krishna will take care of the elderly cows, and in order to take the elderly cows Krishna has to go far, because the cows they generally graze uh, in different forest of Vrindavan. So Krishna was pushing to his parents so that he get the responsibilities. So then all the elderly Gopas were discussing that should we give permission to Krishna? Is Krishna is qualified? And then they were saying, okay, we can give permission to Krishna because Krishna has already reached 5th year, and because Balaram is there, and Balaram have unlimited physical strength. So Balaram, so he can give protection to Krishna, and therefore with Balaram Krishna is protected. So in Srimad Bhagavatam, this pastime comes. Srimad Bhagavatam, कुछ बैकग्राउंड तो नमक वगैरह So in Srimad Bhagavatam, this pastime comes when Krishna so this pastime comes when Krishna wanted to herd the elderly cows, because Krishna wanted to visit all the 12 forests of Vrindavan. So all the 12 forests are very, very beautiful place. They are filled with beautiful trees and hills, beautiful kundas, ponds, lakes, forest, and other beautiful groves. Also, these forests are on the both side of beautiful river Yamuna. So Krishna wanted to take darshan of this 12 forest, and Krishna wanted to perform his sweet pastime in the different forest of Vrindavan. And therefore Krishna
in the name of herding the cows, uh, 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 in the name of herding the cows, he want to actually perform pastime in the different forest of Vrindavan. And Krishna wanted to decorate the whole Brajabhumi by his transcendental lotus feet. And thus he want to increase the glories of Vrindavan Dham. He want to increase the glories of the dust of Vrindavan. And therefore he want to travel. He want to visit all the different forests of Vrindavan. So Vrindavan Dham is filled with the dust of Krishna's lotus feet. And anyone who visit Vrindavan Dham, they become free from all the reaction of his sinful activities, because they are purified by the dust of Krishna's divine lotus feet. So when Krishna was present in Vrindavan, he were traveling whole Brajabhumi with bare feet. Krishna was traveling whole Vrindavan Dham with bare feet. And therefore whole Brajabhumi was Vrindavan Dham, or earthly planet, was in Krishna's touch of Krishna's divine lotus feet. So when Krishna went out of Vrindavan and entered into Mathura, Krishna was wearing sandal. But in Vrindavan he was walking bare feet to glorify the land of Vrindavan Dham. So in this particular pastime, where Krishna were going out, Krishna is about to go out for herding the cows in 12 forest of Vrindavan. So Krishna's parents, Nanda and Jashoda, asked Krishna to wear shoes. Krishna says that, how can I wear shoes? If I wear shoes, then you have to give shoes to all the cows and calves. So we are from Vaishya community and we are actually servant of cows. गो माता की सेवा करना हमारी धर्म है. तो कैसे सेवक चप्पल पहनेंगे और मालिक खाली पैर घूमेंगे? तो अगर आप मेरे को चप्पल पहनाना चाहते हैं तो पहले गायों के लिए चप्पल चाहिए. तो कितने गाय है कृष्ण की? कितनी गाय है? 8 लाख प्रभु. 9 लाख 9 लाख प्रभु जी. 9 लाख. एक 9 लाख कर दिया. कौन बोला 2 अच्छा, लाख? 9 लाख. 9 लाख प्रभु जी. हरी वो 9 lakhs. And how many Radharani and Vrishabhanu Maharaj, how many cows he have? वृषभानु महाराज के कितनी गाय है? नंद महाराज के कितनी गाय है? नंद महाराज का 9 लाख और वृषभानु महाराज का 10 ওর থেকে বেশি প্রভু. वृषभानु महाराज का 11 लाख. तो पहले जमाने में कौन कितना धनी था, वो उसका कैलकुलेशन होता था कितनी गाय है और कितना जमीन है. लैंड एंड काउस, दे आर द like natural wealth. तो 9 लाख गाय के लिए कितना चप्पल चाहिए? 36 लाख. वो पास कर गया. कोई कुछ लोग बोलते 9 लाख. 9 लाख गाय के लिए 36 लाख चप्पल चाहिए. तो फिर प्रपोजल कैंसिल हो गया. तो फिर नंदा महाराज बोले ठीक है, अगर आप चप्पल नहीं पहनना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके क्या बोलते हैं मुखमंडल के ऊपर एटलीस्ट छतरी रहना चाहिए. एटलीस्ट इतना धूप में आप गोचारण करने के लिए जाएंगे, आपके सुंदर फूल के जैसे मुंह
जो है वो मुरझा जाएगा। हाँ? आपके चंद्रमा के जैसा कोमल मक्खन के जैसा मुंह है, हाँ, तो वो, हाँ, क्या बोलते हैं, सूख जाएगी। तो इसीलिए आपको छतरी, हाँ, लेना पड़ेगा। तो कृष्ण कह रहे अगर हमें छतरी देंगे तो हमारे गौ माता के लिए भी छतरी होना चाहिए। तो अभी हम कैसे, हम गौ माता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास छतरी रहेगा और माता के पास छतरी नहीं रहेगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो 9 लाख गाय के लिए कितना लाख छतरी चाहिए? 9 लाख प्रभु। हाँ, 9 लाख प्रभु। कितना? 9 लाख गाय के लिए 9 लाख छतरी चाहिए, और 9 लाख छतरी को पकड़ने के लिए कितने लोग चाहिए? 9 लाख। और 9 लाख लोग चाहिए। तो कृष्णा, हाँ, इतने बुद्धिमानी से, हाँ, प्रेजेंट किया कि सारे प्रपोजल कैंसिल हो गया। तो तो इस तरीके से कृष्णा एक्चुअली वृंदावन धाम के महिमा को वर्धन करने के लिए खाली पैर में जाना चाहते थे, खाली पैर में जाना चाहते थे। तो इस प्रकार वो ब्रज भूमि के महिमा को वृद्धि करना चाहते थे, और कृष्णा, हाँ, गायों की महिमा का वृद्धि, गायों की महिमा का प्रतिष्ठा करना चाहते थे। ब्रज भूमि का महिमा प्रतिष्ठा करना चाहते थे, और गायों की महिमा का प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। कृष्ण की धाम का नाम है गोकुल। गो मतलब गाय। कृष्ण के नाम है गोपाल। कृष्ण के नाम है गोविंद। गो मतलब गाय, जो गायों को प्रतिविधान करते, जो गायों की रक्षा करते, गो गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करते, वो है गोविंद। तो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्ण के नाम है गोविंद क्योंकि वो गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और उसकी उनके पालन करते हैं। तो तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब इस तरीके से कमिंग एंड गोइंग आउट, उनको बोलिए कि आप फोन से ज्वाइन करिए अगर आपको मोबाइल में प्रॉब्लम है। तो जब कृष्ण ने इस प्रकार कहा कि मैं खाली पैर जाऊंगा और मैं छात्री नहीं लूंगा, तो सारे ये खबर सारे गायों के पास पहुंच गया। तो गायों के जो सरदार थे, सिंह ऊंचा करके आ गया कि हमारे प्रभु जी कहाँ हैं, हम्बो करके कहने लगा कि हमारे प्रभु जी हम लोगों के लिए चप्पल पहनना और छतरी लेना अस्वीकार किया है। हमारे प्रभु जी, हमारे सरदार कृष्णा कल हम लोगों को लेके गोचारण करने के लिए जाएंगे पहली बार के लिए, और नंद महाराज और माँ यशोदा हमारे, हाँ, जो प्रभु हैं कृष्ण, हाँ, उनको चप्पल और छतरी लेने के लिए आदेश दिए थे। लेकिन कृष्ण ने, हाँ, उनके जो आदेश है अस्वीकार किए, क्योंकि, हाँ, वो चाहते हैं कि क्योंकि हमारे पास चप्पल और छतरी नहीं रहेगा, और
और वो हम सभी गायों की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये चप्पल और छतरी स्वीकार नहीं किए। तो सारे गायों के अंदर एक दूसरे से बातचीत होने लगा कि कृष्ण ने उनको इतना प्यार करते हैं, कृष्ण उनको इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए अपने सारे सुख सब कुछ कृष्ण छोड़ने के लिए तैयार है। तो तब सारे गायों के अंदर मीटिंग स्टार्ट हुआ कि कृष्णा के चरण बहुत ही कोमल है, कृष्ण के चरण मक्खन से भी कोमल है, तो कृष्ण की चरण जो है कमल से भी कोमल है। तो गोपियां कृष्ण के चरण को कमल के साथ तुलना करती है। चलसी जद ब्रजान चारयान पशून नलिन सुंदराम नाथ ते पादम। तो कृष्ण के जो चरण कमल है ये नलिन सुंदरम, नलिन मतलब कमल, कमल के जैसा सुंदर है। तो कमल बहुत कोमल है, कमल बहुत सुगंधित है, कमल बहुत ही सुंदर है। 3 गुण है, कोमलता, सुगंध और सौंदर्य। तो उसी प्रकार कृष्ण के चरण भी बहुत कोमल है, बहुत ही सुगंधित है कृष्ण के शरीर, और कृष्ण के शरीर बहुत ही सुंदर है, चरण बहुत ही सुंदर है। तो वो चरण जब ब्रज में अलग अलग जगह में जाएंगे, अलग अलग वनों में जाएंगे, तो कृष्ण के कोमल चरणों में तिनका, कंकर और कांटे चुभेंगे। तो कृष्ण को बहुत ही कष्ट होगा, क्योंकि कृष्ण के चरण कमल बहुत ही कोमल है और कृष्ण खाली पैर जाएंगे, कृष्ण के चरण में बहुत कष्ट होगा। तो हम लोग 2011 में ब्रज मंडल का परिक्रमा किया था मैं, तो उसमें ब्रज के जो 84 क्रोश का परिक्रमा होता है और उसमें ब्रज के सारा 12 वन में भ्रमण करते हैं। 30 दिन लगता है, हर दिन 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं हम लोग ब्रज के अलग अलग जगह में। तो हम लोग जब परिक्रमा कर रहे थे तो रास्ते में बहुत ही कंकर था, तिनका था, रास्ता बहुत ही खराब था। ब्रज के जंगल के अंदर से, खेती के अंदर से, रास्ते के ऊपर से जा रहे थे हम लोग। तो सुबह 5 बजे से लेके हम लोग दोपहर 1 बजे तक पैदल चलते थे, और फिर अगला जगह आ जाता था तो उधर टेंट रहता था, तो उधर हम लोग रात को रुकते थे। प्रसाद होता था, कथा होता था, ड्रामा होता था, और उधर ही हम लोग नहाते थे, और सब कुछ उधर ही रहता था। तो हम लोगों को बहुत दर्द हो रहा था पैर में। तो कृष्ण को तो फिर और कितना सा दर्द होता होगा। तो सारे गाइया सोच रही थी कि कृष्ण को बहुत ही कष्ट होगा, कल कृष्ण गोचरण करने के लिए हम लोगों को लेके जाएंगे। हम लोग कितने सौभाग्य, कृष्ण खुद हम लोगों को लेके ब्रज के अलग अलग वनों में विहार करने के लिए जाएंगे। हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हमें कृष्ण की संग प्राप्त होगा, कृष्ण की एसोसिएशन मिलेगा, कृष्ण की प्रेम मिलेगा, कृष्ण की कृपा मिलेगी। तो हम लोग कितने भाग्यशाली है कि कृष्ण स्वेच्छा से उनकी संग दे रहे हैं, और वो हम लोगों की सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए वो अपने सारे सुख को परित्याग कर रहे हैं। तो इधर कृष्ण सिखा रहे कि कैसे वैश्य के हिसाब से, वैश्य के धर्म है गोरक्षा, वैश्य के धर्म है गोपालन, वैश्य के धर्म है खेती करना। आज के जमाना में लोग वैश्य लोग ज्यादा पैसा कमाने में ज्यादा बिजी है, वो लोग एग्रीकल्चर नहीं करते, खेती नहीं करते हैं। वैश्य का धर्म है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावज। तो आज के जमाने में वैश्य लोग केवल वाणिज्य करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं, सोशल मीडिया
और अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट, हाँ, ये सब वैष्णव का काम है। तो ज्यादा पैसा कमाना है। और वो लोग ना गो रक्षा करते हैं, वो लोग ना खेती करते हैं। तो तो अभी वैश्य कम्युनिटी, भारत के, अमेरिका के जो वैश्य कम्युनिटी है, मनी मेकिंग कम्युनिटी, मोर मनी मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड नो काउ प्रोटेक्शन, नो कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो इस प्रकार सारे गाय लोग चर्चा कर रही थी आपस में कि कृष्ण हमारे लिए इतना त्याग स्वीकार किए, कृष्ण हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, कृष्ण हमें इतना प्रेम करते, तो हम लोग कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोगों को कृष्ण के लिए क्या करना चाहिए। तो सब लोग आपस में चर्चा किए, मीटिंग बुलाए। तो रातों रात मीटिंग हुआ और उधर फाइनल हुआ, सारे हेड काउ के गाइडेंस में फाइनल हुआ कि काल कृष्ण जब गोचारण करने के लिए पहले बार निकलेंगे, हाँ, तो हम लोग सब कृष्ण के आगे आगे चलेंगे। हाँ, हम लोग कृष्ण के आगे आगे चलेंगे और रास्ते में जितना भी पत्थर, कंकर, तिनका जो भी आएगा उसको हम लोग हमारे पैर से कुचल डाल के पाउडर बना देंगे और कृष्ण की कोमल चरणों में थोड़ा सा भी कष्ट नहीं आएगा। हरि बोल। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटा सा मेरो मदनो गोपाल। हरि, छोटा सा मेरो मदनो गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदनो गोपाल। हरि, छोटा सा मेरो मदनो गोपाल। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, छोटा सा मेरो मदनो गोपाल। तो कृष्णा गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, गाइया उनके आगे जा रही है, गाइया उनको आगे जा रही है और हाँ, कृष्ण बलराम के साथ बहुत ही सुंदर, हाँ, मुरली बजाते हुए कृष्ण आगे जा रहे हैं और गाइया कृष्ण की बांसुरी के अमृत का पान करते हुए, कानों से कृष्ण की अमृत का पान करते हुए। वृंदावन में 3 चीज फेमस है, मैंने कहा था पहले, बेनु, तो कृष्ण में वृंदावन में 3 चीज फेमस है, बेनु, धेनु, रेनु। बेनु मतलब बांसुरी, धेनु मतलब गाभी और रेनु मतलब कृष्ण की चरणों की धूल। बेनु, रेनु, धेनु, याद रखिएगा। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है क्या? जी प्रभु जी, अभी आ रहा है। कितना सुनाई नहीं दिया? बेनु, रेनु, धेनु सुनाई दिया? प्रभु गाने का बाद फिर प्रभु स्टॉप हो गया था प्रभु। हाँ? पता नहीं चला। आपने जितना तक गाना गाया उसके बाद आपने कुछ बोला, उसके बाद अपने को मतलब हम लोग को सुनाई नहीं दिया प्रभु। ओके। तो फिर ऑडिबल नहीं था। तो गाइया लोग आगे जा रही थी और कृष्ण और बलराम पीछे पीछे जा रहे थे और आगे जाके जितने भी तिनका, कंकर और
हाँ, पत्थर आ रहे थे तो गोपियां, सारे गाय लोग अपने चरण कमलों के द्वारा, अपने चरणों से द्वारा सबको डास्ट बना के, सबको कुचल डाल के उसको धूल बना दिए हैं। तो इस प्रकार अभी भी आप ब्रज में जाएंगे तो ब्रज के जो धूली है बहुत ही सॉफ्ट है, उसमें आप खेल सकते हैं, उसमें आप लोटपोट कर सकते हैं। तो वृंदावन में ऐसे बहुत स्थान है जिसमें ब्रज के धूल बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। रमन रेती उसको कहते हैं, जिस रेती में आप रमन कर सकते हैं, आनंद विहार कर सकते हैं। तो सारे गाय लोग कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, क्योंकि कृष्ण उनका सेवा करने के लिए, कृष्ण उनके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। तो सुनाई नहीं दे रहा है? हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। नहीं आ रहा प्रभु, आपके उसमें आवाज नहीं आ रहा। Kindly connect again. तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। हेडफोन निकाल के एक बार लगाइए प्रभु। अभी बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, अभी भी नहीं आ रहा। इधर तो ऑन है। इधर नहीं आ रहा, मैंने कनेक्ट किया हुआ ना आपका। तो इधर क्लिक करिए। नहीं तो सब कुछ ऑन है, आवाज नहीं आ रहा। तो एक सेकंड खोल के लगा है। एक मिनट, अब बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। ये आ रहा है आवाज। कैन यू हियर मी? हरि बोल। सुनाई दे रहा है क्या? नहीं प्रभु, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट मारना पड़ेगा। प्रभु डिस्कनेक्ट मार देंगे, फिर ज्वाइन करते हैं। दोबारा रिटर्न टू मीटिंग हम उसमें रीजॉइन। मे बी नेटवर्क इशू। कोड बताता हूँ तो। हरे कृष्णा। अच्छा माइक ऑफ है, तो माइक बोलिए। हरि बोल। आर यू एबल टू हियर मी? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ओके। जो लोग निकल गए हैं, कुछ लोग निकल गए तो उसको ज्वाइन करा दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए कौन आउट है। तो
Okay. तो ये तो सुन पा रहे हैं आप लोग? हरि बोल. Yes, Yes, Prabhu. yes, Prabhu. Okay, so we continue. So the cows of Vrindavan, they are they're ready to do everything to serve Krishna. So Krishna is ready to do everything for the cows, and cows are ready to do everything for Krishna. So this is Vrindavan Dham. This is the devotees of Vrindavan Dham. So Krishna loves cows and cows loves Krishna. Krishna is ready to do everything for the cows, and cows are ready to do everything for Krishna. So this is bhakti. So therefore, Krishna's name is Govinda. So if we want to advance in Krishna consciousness, or if you want to enter into Sri Vrindavan Dham, we have to also imbibe this quality. We have to also cultivate this quality to be ready to do everything for Krishna. So Krishna has given us this Krishna consciousness, Brahmanda Bhavita Kono Bhagyavan Jeev, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. So Krishna has given this Bhakti Lata Bij through his representative Srila Prabhupada. Krishna has given ISKCON society, Krishna has given association of devotees, Krishna has given holy name, Krishna has given prasad, Krishna has given Hari Katha, Krishna has given scripture, Krishna has given the beautiful holy dham, Mayapur, Vrindavan, Jagannath Puri, and different other holy places. So Krishna has provided, Krishna stretched out his hand to take us back home, back to Godhead. So Krishna have extended himself in all the way from spiritual world to material world to take us back. We have to also stretch ourselves to catch Krishna's hand. We have to also extend ourselves. We have to also receive Krishna's mercy by chanting the holy name regularly, by chanting 16 rounds minimum every day, by following 4 regulative principles, by coming in the association of devotees and hear about Krishna, by offering bhoga and taking Krishna prasad, by reading the scripture. So as Krishna is giving his mercy, we have to be ready to serve Krishna. And that is the qualification to enter into the spiritual world. So here the cows are setting example that how we should be ready to serve Krishna in all the way. Cows are planning कि तुम आगे रहेगा, मैं पीछे रहूंगा, तुम इस साइड. इस प्रकार जितने भी कंकर तिनखा आएंगे सबको कुचल डालेंगे. So they are concerned about Krishna's pleasure. That is the consciousness of Vrindavan Dham. Everybody is conscious about Krishna's pleasure. Material world, everyone is conscious for his pleasure. His pleasure, his wife pleasure, his husband pleasure, his children pleasure, and thus his own pleasure. And that is called lust. Atmendra Priti Vancha. But Krishnendra Priti Ichha Dhare Premonam. But the devotees are concerned about Krishna's pleasure. And therefore, they are trying to bring everyone in Krishna consciousness. They are trying to set an atmosphere, create an atmosphere so that everybody become devotee. So therefore, so is this Gopastami festival
is very, very important, where Krishna first time went to herding the cows. So also this particular day, we get darshan of Radharani's lotus feet in Vrindavan Dham and in Mayapur Dham. तो उसका विशेष लीला है। तो गोपाष्टमी के दिन राधा रानी का चरण का दर्शन होता है। तो जब कृष्ण गोचरण करने के लिए पहली बार आते हैं तो सारे गोपियां कृष्ण को देखने के लिए आते हैं। सारे गोपियां कृष्ण की इस विशेष रूप मुरली मनोहर, मुरली मनोहर गोपाला श्यामो सुंदर नंदलाला, मुरली मनोहर गोपाला श्यामो सुंदर नंदलाला, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटा समेरो मदनो गोपाल। तो सारी गोपियां आते हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो और जब आती हैं सारे गोपियां तो अपने जो क्या बोलते हैं घाघरा, अपने घाघरा उठा के आते हैं और तब गोपियों की चरणों का दर्शन होता है। जनरली गोपियां दे डिड नॉट शो देयर फीट, वो अपने चरण को नहीं दिखाती हैं, वो कृष्ण के चरणों की दर्शन करती है। लेकिन ये आज के दिन गोपियां कृष्ण को जब दर्शन करने, आवाज नहीं आ रहा प्रभु, हरि बोल। ऐसा हो रहा है। हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रहा है प्रभु, अभी आ रहा है। तो आज के दिन गोपियों के चरणों का दर्शन होता है। इस प्रकार आज का दिन बहुत ही फेमस है कृष्ण की प्रेम गायों के प्रति और गायों की भक्ति, गायों की सेवा कृष्ण के प्रति। तो वृंदावन में यही कॉन्शियसनेस है, कैसे कृष्ण की संतुष्टि विधान हो, कैसे कृष्ण की सेवा कर सके। तो अगर हम लोग हमारे जीवन में ये क्वालिटी को अपनाने की प्रयास करते हैं, हमारे घर में हमारे परिवार में ये क्वालिटी हम लोग लाते हैं, तो हमारे घर वृंदावन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। So what is the difference between Vrindavan and material world? Material world, everybody is thinking to enjoy, but Vrindavan, everybody is thinking for Krishna's pleasure. तो हमें वो हमें अपने जीवन में डेवलप करने की प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण किस में संतुष्ट होंगे। हम लोग जो भी चीज करते हैं एक प्रश्न पूछ के करना चाहिए। कौन सा है प्रश्न? कि जो मैं कार्य कर रहा हूं इसमें कृष्णा या कृष्ण के प्रतिनिधि भक्त गुरु क्या प्रसन्न होंगे? ये जो मैं कार्य कर रहा हूं इसमें क्या गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे? ये कार्य हमारे करने के समय ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हमें और उत्साह के साथ करना चाहिए, गुरु प्रसन्न होंगे तो और उत्साह के साथ करना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो हमें अच्छा भी लगता है तो उसको परित्याग करना चाहिए। जो चीज हमें अच्छा लगता है लेकिन गुरु कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे उसको परित्याग करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रतिकूल है। भक्ति का डेफिनेशन है अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। भक्ति के अनुकूल चीज को ग्रहण करना चाहिए और प्रतिकूल चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो कृष्ण अगर प्रसन्न नहीं होते हैं, हमें अच्छा भी लगता है तो उसको, देखिए कुछ तो प्रॉब्लम है उधर से, बार बार कुछ आ रहा है कि स्मार्ट कनेक्टेड है और फिर इधर आ रहा है। तो सुनाई दे रहा है? यस प्रभु। तो भक्ति का डेफिनेशन है
कि अनुकूल से संकल्प, भक्ति के अनुकूल चीज को ग्रहण करना और प्रतिकूल चीज को परित्याग करना, यही भक्ति है। आप भक्ति कर रहे कि नहीं कर रहे कैसे समझेंगे? अगर प्रतिकूल चीज को अवॉइड कर रहे हैं और अनुकूल चीज को ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर कृष्ण नहीं चाहते हैं, गुरु नहीं चाहते, शास्त्र नहीं रिकमेंड कर रहा है, तो हमें अच्छा भी लगता है तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। भक्ति में आने से पहले हमें बहुत कुछ अच्छा लगता था, लड़की को देखना, हाँ, और ज्यादा समय सोना, सुबह सोते रहना, हाँ, 4 नियमों को तोड़ना, ये सब अच्छा लगता था हमें भक्ति में आने से पहले। लेकिन भक्ति में आने के बाद हमें उस 4 नियमों को या जो जो चीज हमें अच्छा लगता था, जो भक्ति का विरोधी है, उसको हमें छोड़ना चाहिए, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर से JBL कनेक्टेड। अच्छा, JBL कह रहा है क्या? तो इसीलिए भक्ति में प्रगति करने के लिए, हमें भक्ति के अनुकूल चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, प्रतिकूल चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत बार भक्ति के अनुकूल चीज को अच्छा नहीं लगेगा, उसको इधर लेके आ जाइए ना। नहीं, वो ना इधर से ब्लूटूथ ऑफ कर देंगे तो बंद ही हो जाएगा। बस अब नहीं होगा। तो बहुत बार भक्ति के अनुकूल चीज जो है, नशा छोड़ना, सुबह नींद से उठना, पोर्नोग्राफी नहीं देखना, हाँ, ब्रह्मचार्य का पालन करना, डेली 16 माला करना, बहुत बार अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें भौतिक चीजों में टेस्ट है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में टेस्ट है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन ये भक्ति के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है। कृष्ण इससे दुखी होंगे, हमारा आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगा, हम लोग और भौतिक जगत के बंधन में आ जाएंगे। तो ये सारा चीज को याद करते हुए हमें वो सारी चीज को टॉलरेट करना चाहिए, या हमारे हृदय से परित्याग करना चाहिए। तो तब क्या होगा, आपका आध्यात्मिक फ्लाइट टेक ऑफ करेगा। तो इसलिए भक्ति इज एक्टिविटी, भक्ति इज नॉट सम मेंटल स्टेट, भक्ति इज एक्टिविटी। हाउ यू चूज, व्हाट यू चूज, क्या आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, क्या अपने जीवन में परित्याग करते हैं? आप माया का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कृष्ण की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो इधर गाइया कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कॉन्शियस है कि कृष्ण को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। कृष्ण हमारे लिए इतना किया है, हम कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं? So they are conscious, they are not dead person. उसी प्रकार अगर हम लोग कृष्ण के लिए कॉन्शियस नहीं रहेंगे, then we are living like a dead person. Krishna have done so much for us. कृष्णा, श्रील प्रभुपाद जी हम लोग के लिए इतना सारा चीज किए हैं। श्रील प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के विदेश गए हैं 70 साल की उम्र में। चैतन्य महाप्रभु अपने गृहस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास लिए हैं भगवान हम लोगों के उद्धार के लिए, और हम लोग थोड़ा सा भी भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान हमारा निजी कल्याण के लिए हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार हमारा आध्यात्मिक प्रगति 2 उंगली के ऊपर निर्भर करते हैं। वो 2 उंगली क्या है? 2 उंगली क्या है? क्या है बताइए? Krishna's mercy and striving. हाँ,
प्रयास करना कृष्ण की कृपा। हमारा प्रयास और कृष्ण की कृपा। तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करते हैं दो चीज के ऊपर, हमारा प्रयास और कृष्ण की कृपा। तो अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे हमारे जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, डेली 16 माला जप करने के लिए, सुबह उठने के लिए, 4 नियमों को पालन करने के लिए, और जितने भी हमारा वीकनेसेस है उसको छोड़ने के लिए, अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे भक्तों के संग में आने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, मांसाहार छोड़ने के लिए, अवैध संग छोड़ने के लिए हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, तो कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगा? गाय लोग प्रयास कर रही है, कैसे कृष्ण संतुष्ट होंगे? कृष्ण ने हमारे लिए इतना किया, तो हम कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं? इस प्रकार ब्रज में हर भक्त, जैसे माँ यशोदा प्रयास कर रही थी, वैसे गाय लोग प्रयास कर रही है, उसी प्रकार सखा लोग प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार गोपियां प्रयास कर रही है। किस प्रकार कृष्ण की कृपा मिलेगा, किस प्रकार कृष्ण की संग मिलेगा, किस प्रकार कृष्ण की दर्शन होगा, किस प्रकार कृष्ण के बांसुरी के ध्वनि श्रवण करेंगे, किस प्रकार कृष्ण की सेवा करेंगे, और इस प्रकार वो लोग हमेशा कृष्ण को याद कर रहे हैं, कृष्ण की अपेक्षा कर रहे हैं, कृष्ण को पुकार रहे, कृष्ण आप हमारे जीवन में आ जाओ, हमारी जीवन आपके लिए। ये है वृंदावन धाम, ये है भक्ति। तो आपके पास जो भी है कृष्ण से जोड़िए। तो हमारा प्रयास जब होगा तब कृष्ण की कृपा होगी। कृष्ण जब आपके उत्साह देखेंगे तो कृष्ण कृपा करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग गोवर्धन लीला जो खत्म, मतलब आधा खत्म हुआ था, तो उसका बाकी पार्ट हम लोग श्रवण करेंगे। तो हमारा सेकेंड अटेंडेंस रहेगा 9 बजे, क्योंकि 7 बजे क्लास चालू हुआ, तो हमारे पास आधा घंटा अभी भी है। तो आप लोग गोवर्धन लीला सुनना चाहेंगे, जो बचे हुआ पार्ट? आपने राहुल को फोन किया? यस प्रभु। क्या हुआ? हरि बोल। मैसेज भी किया उनको। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरि बोल। हेलो, उनको बोलिए हरे कृष्णा नेटवर्क प्रभु। प्रॉब्लम है तो फोन से ज्वाइन करने के लिए। प्रभु फोन से ज्वाइन करिए, इसी फोन बस लगे रहिए, सुनते रहिए प्रभु। ओके, हरि बोल। ज्वाइन। So Siddharth, you are taking attendance, huh? You are supposed to take attendance both. Yes, Prabhu. I have taken earlier, and at 9 I will take another attendance. Yes. So according to the attendance, we will give certificate. तो लास्ट टाइम हम लोग चर्चा किए थे कि गोवर्धन पूजा हो गया और इंद्र के पास खबर पहुंच गया कि सारे ब्रजवासी लोग ये छोटे से बालक के पल्ले में पड़ के, हाँ, इंद्र पूजा बंद कर दिए। हाँ, तो इंद्र बहुत गुस्सा हो गया कि कैसे ग्वाल लोग, ये लोग, कोई थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं हुआ क्या इन लोगों का? मेरी पूजा बंद कर दिया। तो फिर हाँ, तो इंद्र बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने संवर्तक को बुलाया। तो संवर्तक को बुलाया, कहा कि संवर्तक जाओ, ब्रज में प्रबल बरसात करो, और ऐसे बरसात करो
कि ब्रजवासियों को, इस ग्वाल लोगों को शिक्षा हो जाना चाहिए कि इंद्र पूजा बंद करने से क्या पनिशमेंट होता है, इंद्र के भक्ति नहीं करने से क्या होता है, इन लोगों को पता चल जाना चाहिए। तो संवर्तक ने क्या किया? हाँ, संवर्तक एक्चुअली प्रलय के समय जो वर्षा होता है वो संवर्तक करते हैं। तो इंद्र के आदेश में संवर्तक प्रचुर मात्रा में हेवी रेन, बारिश ऐसा हो रहा था कि घने बादल और तूफान चालू हो गया, साइक्लोन के जैसा, और बारिश के जो बूंद गिर रहा था, लग रहा कि एक पिलर गिर रहा है ऐसा। तो पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। हाँ, और ऐसा लग रहा था कि पूरे वृंदावन डूब जाएगा। तो सब लोग नंद महाराज के पास आ गए कि नंद महाराज क्या हुआ, देखिए हम लोग इंद्र पूजा को बंद कर दिया और इसी कारण हमें इंद्र की कोप हुआ। कोप समझते हैं? हाँ? इंद्र की क्रोध हुआ और उसके कारण अभी इंद्र, हाँ, पूरे ब्रज में भारी बरसात कर रहे हैं और हम लोग इंद्र के कोप से हम लोग सब मारे जाएंगे। तो इंद्र ने तब नंद महाराज ने कृष्ण को कहा, देखिए कृष्ण, आपके बातों में आके, आपके बात के अनुसार, हाँ, हमने इंद्र पूजा बंद किया है और गिरिराज का पूजा किए हैं। और अभी देखिए इंद्र बहुत गुस्सा हो गए, तो अभी क्या होगा? तो कृष्ण ने कहा, देखिए आपने गोवर्धन का पूजा किया है और जिस प्रकार गोवर्धन ने आपकी पूजा स्वीकार किए, आपको प्रसाद प्रदान किए, हाँ, लास्ट से हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस प्रकार कृष्ण गोवर्धन के रूप में सारा भोजन स्वीकार कर रहे थे। हाँ, और उसी गोवर्धन आपको रक्षा करेंगे। आप गोवर्धन का आश्रय लीजिए, गोवर्धन आपको आश्रय देंगे। तो फिर कृष्ण की आदेश से सारे ब्रजवासी अपने गाय बैल को लेकर और अपने कुछ मूल्यवान सामग्री को लेकर नंद महाराज सारे मंत्रियों के साथ सब लोग गोवर्धन के तल्लाटी पे जाके पहुंचे और कृष्ण भी उनके साथ गए। और जब कृष्ण सारे ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन के तलाटी पे आए तो कृष्ण ने कहा कि हे गिरिराज, सारे ब्रजवासी आपके आश्रय कामना कर रहे हैं, इस इंद्र के भारी बरसात से आप उन सबको रक्षा करिए। तो तब कृष्ण जब ऐसे बोला तो तब हाँ, कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन के एकदम निकट चले गए और निकट चले जाके अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली से गोवर्धन के नीचे क्या बोलते हैं, गोवर्धन के नीचे पुश मतलब प्रेस क्या बोलते हैं, गोवर्धन के नीचे बल प्रयोग किए। और जब भी कृष्ण गोवर्धन के नीचे बल प्रयोग किए तो गोवर्धन उठने लगा। हरि बोल। गोवर्धन उठने लगा और ऊपर उठने लगा और ऊपर उठने लगा। लग रहा है कि गोवर्धन को बहुत आनंद मिल रहा है कि कृष्ण की स्पर्श प्राप्त हुआ है और गोवर्धन नाचते नाचते आनंद से कृष्ण की हाथों की स्पर्श से गोवर्धन आनंद के साथ ऊपर उठने लगा, उठने लगा और पूरा कृष्ण, हाँ, उनके बाएं हाथ के छोटी उंगली में गोवर्धन को धारण किए। देखिए किसी भी चीज अगर आप बहुत बड़ा चीज है एक साइड में धारण करेंगे तो क्या होगा, एक साइड में उठाएंगे तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, एक तरीके से उठाएंगे तो भार दूसरी तरफ गिर जाएगा। लेकिन कृष्ण के साथ
ऐसा हुआ? कृष्ण एक साइड में धारण किए और गोवर्धन वैसा ही था। तो कृष्ण के लिए सारे मैटेरियल रूल, जो भौतिक जगत के जो रूल है, वो कृष्ण के ऊपर लागू नहीं है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे थे, जैसे आसमान में फ्लाइट चलता है, हाँ, तो आसमान में जब फ्लाइट चलता है तो ये जो जमीन के ट्रैफिक लॉ है वो क्या फ्लाइट के ऊपर लागू है? हाँ, रोड का जो लॉ है, ट्रैफिक लॉ है, वो फ्लाइट के लिए लागू है क्या? लागू नहीं है। हाँ, तो कोई अगर बोलते फ्लाइट इधर से क्यों जा रहे हो, रेड लाइट है सामने, पता नहीं तुमको? हाँ, तो वो मूर्खता है। तो उसी प्रकार हाँ, इस भौतिक जगत के नियम जो है भगवान के ऊपर भी लागू नहीं है और भगवान के जो शुद्ध भक्त मुक्त आत्मा के ऊपर भी लागू नहीं है। आप कितना भी चिल्लाए, कितना भी भगवान के जो पास टाइम है उसको आप भौतिक बोले, तो उसमें कुछ काम नहीं होने वाला है। जिस प्रकार रामचंद्र भगवान पानी के ऊपर ब्रिज बनाए थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भौतिक जगत का रूल लागू नहीं था रामचंद्र के ऊपर, बानर सेनाओं के ऊपर। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन धारण किए थे, हाँ, तो भगवान एक साइड में धारण किया और गोवर्धन खड़े हो गए और फिर कृष्ण ने हाँ, अपनी उंगली को स्पर्श करते हुए गोवर्धन के नीचे आ गए। और जब ही गोवर्धन के नीचे आए तो कृष्ण उस स्थान में बहुत ही सुंदर एक गैलरी जैसा बन गया। गोवर्धन के नीचे बहुत सुंदर एक बहुत बड़ा, हाँ, क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड गैलरी। हरि बोल। हाँ, अब नेताजी इंडोर स्टेडियम देखा है ईडन गार्डन के पास में? हाँ, वो तो जमीन के ऊपर है, इंडोर स्टेडियम है, और कुछ स्टेडियम है अंडरग्राउंड है। कुछ भी बाहर का चीज अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। सो कृष्णा मेड ए अंडरग्राउंड स्टेडियम गैलरी ऐसा करके, और उसके चारे ओर अनंत शेष आके बाउंड्री बना दिया, अनंत शेष आके बाउंड्री बना दिया। और कृष्ण ने सारे ब्रजवासी गाय को बैल को बुलाया कि आप आइए देखिए, गिरिराज ने आपको शेल्टर दिया है, छतरी के जैसा आपके ऊपर आश्रय बन के खड़े हो गए हैं। अभी इंद्र की बरसात कुछ नहीं कर पाएगा, आप सभी लोग आइए। तो सब लोग कृष्ण के क्या बोलते, हाँ, कृष्ण के हरि बोल, गिरिराज महाराज की, कृष्णचंद्र भगवान की। तो सब लोग गिरिराज के नीचे कृष्ण की चरणों के तल में, कृष्ण के चरणों के पास आ गए। तो जो कृष्ण की चरणों की आश्रय लेते हैं, कृष्ण उनके लिए गिरि गोवर्धन उठाते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कृष्ण के चरणों में बहुत सारा चिन्ह है। तो तो बहुत सारे पवित्र चिन्ह हैं।
तो उसमें से एक है चक्र। तो अगर कोई कृष्ण की आश्रय लेते, चरणों की आश्रय लेते हैं कृष्ण, हाँ, और छत्री है, छत्री, तो कृष्ण उनको सारे विपद से रक्षा करते हैं, कृष्ण उनको प्रोटेक्शन देते हैं, भौतिक जगत के त्रिताप क्लेश के धूप से उनको छाया प्रदान करते हैं। तो ब्रजवासी इंद्र की आश्रय छोड़ के कृष्ण की आश्रय लिए थे, जो कृष्ण चाहते थे। ब्रजवासी लोग देवता की पूजा कर रहे थे और कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि वो उनकी सेवा छोड़ के, उनकी आश्रय छोड़ के, शुद्ध भक्ति छोड़ के देवता की पूजा करे। और इसलिए कृष्ण सारे ब्रजवासियों को इंद्र पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहे थे, कि गोवर्धन सारे ब्रजवासियों को मेंटेन करते थे। और गोवर्धन भगवान कृष्ण की और एक रूप है। जैसे वृंदावन में 3 मुख्य पर्वत है, मैंने कहा था। वर्षाना पर्वत कौन है? ब्रह्मा जी है। और नंदीश्वर पर्वत कौन है? शिव जी। और ये गोवर्धन पर्वत भगवान विष्णु के एक रूप है, कृष्ण के एक रूप है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किए और सारे ब्रजवासियों को आश्रय प्रदान किए, सुरक्षा प्रदान किए। कृष्ण गीता में कहते, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों को कभी भी विनाश नहीं होता है जो मेरी शरणागत होते हैं। शिव जी शिव पुराण में कहते, मुक्ति प्रदाता सर्वेशं विष्णु रेवन असंशय, मुक्तिदाता केवल विष्णु। आप शिव जी की आराधना करिए, ब्रह्मा का आराधना करिए, इंद्र का आराधना करिए, वो आपको मृत्यु के हाथ से, जन्म मृत्यु के चक्र से, अलग अलग विपद से आपको रक्षा नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी की उपासना किए थे कौन? हिरण्यकशिपु। शिव जी की उपासना कौन किए थे? रावण। लेकिन क्योंकि लोग भगवत विरोधी थे, तो नरसिंह देव के हाथ, रामचंद्र के हाथ मारे गए। उसी प्रकार अगर हम कृष्ण के आश्रय नहीं लेके केवल देवता की पूजा करेंगे, छठ पूजा, गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी, अलग अलग डेमीगॉड वर्शिप करेंगे, तो डेमीगॉड वर्शिप का फल जो होता है टेम्पोररी होता है, और वो भी कृष्ण के संरक्षण से वो देते हैं। तो हम लोग अपने आप को विपद से या जन्म मृत्यु के चक्र से बचा नहीं पाएंगे। डेमीगॉड्स आपकी भौतिक इच्छा को पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपके अत्यंतिक कल्याण, असली कल्याण नहीं कर पाएंगे। जैसे दुर्गा पूजा हुआ तो सब लोग दुर्गा पूजा में हिंदी फिल्म में डांस करके दुर्गा पूजा कर रहे थे। ना तो दुर्गा पूजा था, ना शास्त्र कह रहे हैं कि हमें डेमीगॉड वर्शिप करना चाहिए। तो कृष्ण गीता में कहते, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, सर्व धर्म परित्याग करके केवल मेरा शरणागत होइए। और ब्रजवासी लोग अपने जीवन से कृष्ण के पास शरणागत होके वो सिखा रहे हैं। ब्रज के लोग उतने शिक्षित नहीं थे, वो लोग यूनिवर्सिटी में से पढ़ाई नहीं किए थे, वो लोग गोचारण करते थे और खेती करते थे, लेकिन वो उनको कृष्ण के प्रति संपूर्ण प्रेम और भक्ति था। कृष्ण के प्रति सरल विश्वास था। कृष्ण के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, और इसलिए कृष्ण उनके लिए पहाड़ उठाने के लिए भी तैयार है। कृष्ण उनके लिए
हर चीज करने के लिए तैयार थे। कृष्णा ब्रजवासियों के प्रेम के द्वारा बांधे गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है के हम लोग भगवान की आश्रय ले और ये विश्वास हम लोग हमारे जीवन में कल्टीवेट करें कि कृष्ण जरूर हमें रक्षा करेंगे। शरणागति के 6 लक्षण हैं, उसमें से एक लक्षण है अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। पहला 2 है हाँ भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। जो मैंने पहले कहा, भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करना और भक्ति के प्रतिकूल को क्या करना, रिजेक्ट करना, परित्याग करना। ये पहला भक्ति का शरणागति का पहला 2 लक्षण है। भक्ति मतलब भक्ति एक लाइट के जैसा है, उसका स्विच है शरणागति। भक्ति एक लाइट के जैसा है, उसका स्विच क्या है, शरणागति। स्विच दबाएंगे तो लाइट जलेगा। वो स्विच क्या है, 6 प्रकार के शरणागति। वो 6 प्रकार के शरणागति का 2 लक्षण है, अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तीसरा है रक्षति इति विश्वासो, कि कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। कृष्ण द्रौपदी को रक्षा किए थे दुशासन के हाथ से। कृष्ण पांडवों को रक्षा किए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में। करोड़ों करोड़ों सेना, बहुत अतिरथी महारथी भीष्म द्रोणाचार्य, बड़े बड़े योद्धा के सामने सब लोग मर गए। कृष्ण 5 पुत्र को रक्षा किए थे। कृष्ण रक्षा किए थे प्रहलाद को पिलर से प्रकट होके नरसिंह देव के रूप में। कृष्ण भीम को रक्षा किए थे नागलोक के विष से, जहर से। तो इस प्रकार रक्षोती इति विश्वासो, कृष्ण अजामिल को रक्षा किए थे, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद भी एक वेश्या के संग किए थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने कठिन परिस्थिति में कृष्ण की आश्रय लिए थे, कृष्ण के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण के नाम की आश्रय लिए थे, तो नाम भगवान अजामिल को नरक जाने से रक्षा किए थे। और अंत में अजामिल भगवत धाम प्रवेश किए। तो कृष्ण हर प्रकार उनके शरणागत भक्तों को रक्षा करते हैं। किसी न किसी तरीके से अगर महाराज परीक्षित को शाप मिला था 7 दिन में तक्षक दंशन में मृत्यु हो जाएगी, और महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के आश्रय में भागवतम का आश्रय लिए थे। भागवतम और कृष्ण अभिन्न हैं। कृष्ण सधाम अपगते धर्म ज्ञान आदि विषा, कलो नष्ट दृश्यामेशम पुराण अर्को धुनोदितो। पुराण रूपी सूर्य के रूप में कृष्ण प्रकट हुए हैं, और महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके तक्षक दंशन करने से पहले ही आध्यात्मिक शरीर में भगवत धाम प्रवेश किए। तो कृष्ण किन को रक्षा नहीं किए?
तो रक्षति इति विश्वासो, तो भक्तों को अपने जीवन में ये विश्वास को कल्टीवेट करना बहुत जरूरत है कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। ते गोवर्धन लीला में हाँ कृष्ण दिखाते हैं कि कैसे उनके अनन्य भक्तों को, उनके शरणागत भक्तों को वो अवश्य रक्षा करते हैं। कृष्ण का नाम है अच्युता, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो कृष्ण का नाम है अच्युता क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों को रक्षा करने में कभी भी नहीं चूकते हैं। तो जब भीष्म पितामह के साथ अर्जुन का लड़ाई हो रहा था और भीष्म देव ने पौन लिया था, मैं अर्जुन को आज मार के ही रहूंगा, और भीष्मदेव के पास इच्छा मृत्यु वरदान है। भीष्मदेव जैसे महान योद्धा कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इवन परशुराम भगवान के अवतार भीष्मदेव को परास्त नहीं कर पाए थे। भीष्मदेव इतने महान योद्धा है और भीष्मदेव ने पान लिया था, मैं अर्जुन को आज मार के ही रहूंगा। और जब अर्जुन के साथ घमासान युद्ध हो रहा था तो अर्जुन भीष्मदेव के बाण की वर्षा को टैकल नहीं कर पा रहे थे और आज लग रहा था कि अर्जुन का मृत्यु हो जाएगा। और कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठ के देख रहे थे अर्जुन की स्थिति। और जब भीष्म इस प्रकार कर रहे थे, कृष्ण बोल रहे थे भीष्म रुक जा, और भीष्म नहीं रुक रहे थे। कृष्ण बोल रहे भीष्म तुम रुक जाओ, नहीं तो तुमको मार दूंगा मैं। तो कृष्ण अकॉर्डिंग टू द लॉ कृष्ण कैनॉट से लाइक दिस। युद्ध के नियम के अनुसार हाँ कृष्ण तो सारथी हैं, कृष्ण ऑलरेडी प्रतिज्ञा किए थे मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा लिया था? भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया था कृष्ण को अस्त्र उठा के ही रखूंगा। भीष्म ने पान लिया था और भीष्म को पता है कृष्ण एक ही कारण अपने प्रॉमिस को, अपने प्रतिज्ञा को, भाव को तोड़ सकते हैं। एक ही कारण कृष्ण अपने प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हैं, वो क्या है? उनके भक्तों की रक्षा। कृष्ण के पास हाईएस्ट भाव है। Highest principle of Krishna is to protect his devotee. To protect his devotee, Krishna can break any law. Why topmost offense against the holy name is to offend devotee. हरि नाम के सबसे बड़ा अपराध वैष्णव अपराध क्यों है? क्योंकि वैष्णव लोगों की सुरक्षा, वैष्णव लोगों की संतुष्टि कृष्ण के पास टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो कृष्ण उनके भक्तों को रक्षा करने में कभी भी च्यूत नहीं होते हैं। भीष्मदेव को ये पता था और इसलिए उन्होंने अर्जुन को अटैक किया कि भीष्मदेव देखना चाहते थे कृष्ण कैसे उनके भक्तों को रक्षा करते हैं। भीष्मदेव देखना चाहते थे कृष्ण कितना उनके भक्तों को प्रेम करते हैं और इसलिए कृष्ण बोल रहे थे भीष्म रुक जा, लेकिन भीष्म नहीं रुक रहे थे और कृष्ण कोई ऑप्शन नहीं देख के अपने रथ के पहिया लेके भीष्मदेव को मारने के लिए दौड़े। अभी कृष्ण भीष्म को मारना था, अगर सच में भीष्म को मारना था तो सुदर्शन को छोड़ सकते थे, रथ के पहिया क्यों उठाए?
क्योंकि भीष्म कृष्ण के महान भक्त हैं और भीष्म को पता था कि कृष्ण अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं, अर्जुन कृष्ण के महान भक्त हैं। और भीष्म देव के स्तुति जो आते हैं श्रीमद् भागवत में, हम लोग सीनियर बैच में चर्चा कर रहे थे 2-3 महीने पहले, तो भीष्म देव अर्जुन के साथ कृष्ण के पर्सनल रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई करते हैं और कृष्ण को अर्जुन सखा के रूप में कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्ण इज अर्जुन सखा, कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं और इसलिए उनके संतुष्टि के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कृष्ण अपने वचन को तोड़ सकते हैं। देखिए कृष्ण उनके भक्तों को कितना प्रेम करते हैं कि कोई अपना बदनाम, किसी का वचन तोड़ देता है तो क्या बदनामी होता है? कृष्ण बदनाम लेने के लिए तैयार है उनके भक्तों को रक्षा करने के लिए। तो भक्तों को क्यों भगवान के प्रति भगवान जरूर रक्षा करेंगे, ये विश्वास वो अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप कार्य करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान बचा दीजिए। आप पढ़ाई नहीं करेंगे पूरा साल और भगवान को बोलेंगे कि भगवान हमें रक्षा करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप जप नहीं करेंगे और भगवान आपको रक्षा करेंगे। आपको भगवान के पास अपना भक्ति, क्या बोलते हैं, निवेदन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप पूरा साल माया में डूबे रहेंगे और अपने आप को भक्त समझेंगे। आपके पास जप करने के लिए समय नहीं रहेगा। कभी कभी मंदिर में थोड़ा सा एक बार भगवान को दर्शन देने के लिए आएंगे कि भगवान अटेंडेंस दे के गए आपको। भगवान चाहे तो रक्षा कर सकते हैं, लेकिन भगवान किनको रक्षा करते हैं, भगवान किनके प्रार्थना सुनते हैं? सरंग शरणागति हईबे जार, ताहारो प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, सपार्षद श्री धाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेरो प्राण। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं सपार्षद और उनके धाम के साथ सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? शरणागति। तो इस शरणागति एक स्विच के जैसा है जिसको दबाने से प्रेम उत्पन्न होगा, भक्ति उत्पन्न होगा। तो उसका पहला 3 हमने चर्चा किया है आज। अनुकूल संकल्प, अनुकूल चीज को स्वीकार करना, प्रातिकूल वर्जनम, प्रतिकूल चीज को परित्याग करना, रक्षोति इति विश्वासो, कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, ये विश्वास हमें हमारे जीवन में कल्टीवेट करना। बहुत बार लगेगा कि भक्ति करेंगे कृष्ण बचाएंगे क्या, हमारा ये विपद है सामने, हमारा एग्जाम है सामने, हम जप करें क्या? नहीं, जप नहीं करके केवल पढ़ाई करता हूं, दुर्योधन के जैसा। कृष्ण की आश्रय नहीं लेके युद्ध करता हूं, लेकिन अर्जुन ने युद्ध किया लेकिन कृष्ण की आश्रय लेके। दैट इज भक्ति। घर में लोग अलग अलग चीज बोल रहे हैं, भक्ति करे क्या? मन में बहुत सारे उल्टा सीधा विचार आ रहे हैं, वो सारे विचार को स्वीकार करूं या कृष्ण की प्रपोजल स्वीकार करूं? ये सारे अलग अलग इंद्रियों के वेग आ रहे हैं, भक्ति करूंगा तो इससे बच पाऊंगा क्या? तो विश्वास, इस विश्वास को बना के रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसको बनाने के लिए साधु संघ की जरूरत है, उसको बनाने के लिए श्रवण करना जरूरत है,
और उसको बनाने के लिए एक सुदृढ़ भक्त जो होते हैं, गुरु, हाँ, जो हाँ बहुत ही क्या बोलते हैं, हाँ, वट वृक्ष के जैसे खड़े हुए हैं और छोटे छोटे पेड़ को, छोटे छोटे लोगों को आश्रय दे रहे हैं। तो गुरु एक वट वृक्ष के जैसा है जो बहुत तूफान आएंगे तो हिलेंगे नहीं। हाँ, श्रील प्रभुपाद और उनके महान शिष्य लोग जीवन के हर कठिन परिस्थिति में भक्ति में स्टेडी है। ऐसे भक्तों की आश्रय हमें विश्वास प्रदान करते हैं, हमें भगवान के प्रति विश्वास बना के रखने में और भक्ति के गाड़ी को ड्राइव करने में मदद करते हैं। अगर हम सोचते हैं हम अकेला भक्ति करेंगे, भक्तों की संग नहीं चाहिए, क्लास तो मैंने सुन लिया, एक ही क्लास बोलेंगे प्रभु जी फिर से। अगर हम लोग सोचते कि नहीं सेम लेक्चर होगा, हम तो सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए हैं, वही लेक्चर है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। तो माया का एक क्या बोलते हैं झोंका आपको उड़ा के लेके चला जाएगा। तो अगर हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग डिवोटी के शेल्टर, एसोसिएशन, दैट्स व्हाट हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सीनियर भक्तों का एसोसिएशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करे। हाँ, वैसे शंकरशरण निताय प्रभु, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, हाँ, और भी लास्ट टाइम पालक पार्थसारथी प्रभु आए थे। तो ऐसे अच्छे अच्छे भक्तों, हाँ, मैं जैसे फालतू भक्तों से सुनने के साथ साथ और कुछ अच्छे भक्तों को भी सुनने के आप सबको मौका मिले, और इस प्रकार आप लोग भक्ति के मार्ग में हाँ टिके रहेंगे। भक्ति में आना आसान है, टिके रहना उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति और गुरु की कृपा और सिंसियरिटी चाहिए। तो माया बहुत स्ट्रांग है, हमारे इंद्रिय और मन बहुत विचलित हैं। इंद्रिय मन गलत चीजों में, गलत प्रपोजल देने में, बाहर के दुनिया में कितने सारे कंफ्यूजन है, साइंस, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, people are so much confused and they think that we know everything. हर चीज में कंफ्यूज है, लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ पता है। तो इसीलिए भक्ति के मार्ग में टिके रहने के लिए मार्गदर्शन चाहिए, और उसके लिए हमें एग्जाम्पलरी डिवोटी, जो अपने जीवन से आचरण करते हैं, ऐसे भक्तों की आश्रय चाहिए। तो उनके आश्रय से हमारा भक्ति में विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो इस दूसरी दुनिया के तथाकथित लोग हैं, तथाकथित दोस्त हैं, उसके संग में हम लोग उनके जैसे ही माया के रास्ते से, भक्ति से निकल जाएंगे। तो इसलिए भक्तों की संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो माया हमेशा पोक कर रहा है, अरे तुम वो कर, देख तेरा दोस्त क्या कर रहा है, उसका गर्लफ्रेंड है, तुम क्या इधर भक्तों के संग में बैठ गया साधु बनने के लिए। तो ते बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्षोति इति विश्वासो, कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। चौथा है गोप्रित्य वर्णम तथा, कृष्ण ही हमारा मेंटेनर है। कृष्ण इज ओनली माई मास्टर, आई एम कृष्ण सर्वेंट, नॉट माई गर्लफ्रेंड इज माई मास्टर। हाँ, बॉयफ्रेंड सोचते गर्लफ्रेंड इज माई मास्टर, गर्लफ्रेंड सोचते बॉयफ्रेंड इज माई मास्टर।
Not my company boss is my master. Not money is my master. Not my senses is my master. Not my materialistic family members and relative is my master. Krishna is actually my master and is my maintainer. गोप्रित्य वर्णम तथा, तो कोई शायद काम कर सकता है ऑफिस में, कोई शायद अपने घर में रह सकता है, बट हृदय से वो कृष्ण जानते हैं कि कृष्ण ही हमारा मेंटेनर है, कृष्ण सबको मेंटेन कर रहे हैं. डिवोटी नॉन डिवोटी, कृष्ण इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू एवरीवन. कृष्ण इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग रेन, वाटर, वेजिटेबल्स. हु इज प्रोवाइडिंग? हम लोग सोचते हैं हम मेंटेन कर रहे हैं, ये मेंटेन कर रहे हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं, ये बॉस है, वो बस. एक्चुअली कृष्ण इज बॉस. द रियलिटी इज कृष्ण इज द मेंटेनर. गोप्रित्य वर्णम तथा. And then last two is अनुकूल संकल्प प्रातिकूल वर्जनम रक्षति विशेष गोप्रित्य वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सर्वविधा शरणागति. आत्मनिक्षेप कार्पण्य means आत्मनिवेदन. Example is Bali Maharaj. And कार्पण्य means दैन, humility. तो दैन, आत्मनिवेदन, गोप्रित्य बरण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार. तो जब ब्रजवासी ने कृष्ण की शेल्टर लिया, तो कृष्ण ने गोवर्धन उठा के ब्रजवासियों को रक्षा किए. और जब ब्रजवासी को रक्षा किए तो इंद्र को खबर चल गया कि छोटा सा बालक पहाड़ उठाया है. संवर्तक आके खबर दिया, तुम पागल हो गया क्या, वो छोटा सा बालक पहाड़ उठाएगा? तो बोला ये विद्युत, मतलब जो वर्षा के समय विद्युत आता है, मतलब विद्युत तुम जाके देख तो थोड़ा, क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, थोड़ा शायद गलत फोटो खींच के आ गया. तो विद्युत गया, तो विद्युत जाके एकदम फोटो खींच के लाया. बोले इंद्र जी देखिए, वो छोटा सा बालक है ना, वो ग्वाल बालक जो नंद गांव में रहता है, छोटा सा बालक गोवर्धन उठाया. तो जब इंद्र ने देखा तो बहुत डर गया. तो बोले ठीक है अभी मैं जाता हूं. तो सबने फेल, तो जितने भी संवर्तक सबने इतना बारिश किया, थोड़ा सा भी बाल बांका नहीं कर पाया, थोड़ा सा भी पानी अंदर घुस नहीं पाया. तो इंद्र गया खुद, ऐरावत के पीठ में बैठ के, उसके पास वज्र है, जैसे वज्रपात होता ना, इंद्र के वज्र है एक्चुअली. तो वज्र से गोवर्धन के ऊपर प्रहार करने लगा और घमासान बारिश देने लगा. लेकिन कृष्ण के हस्त कमल के द्वारा उत्तोलित होने के कारण गोवर्धन के ऊपर वज्र के प्रहार गोवर्धन पर्वत को कष्ट नहीं पहुंचा पाया. So if you're connected with Krishna, there can be many suffering from this material world, but it will not be able to affect you because you are in connection with Krishna. Krishna means Krishna's pure devotee guru. Krishna means Krishna's name. Krishna means Krishna's devotees. Krishna means Krishna's deities. Krishna means Krishna's scripture, भागवत. तो अगर आप भागवत, अगर आप हरिनाम, अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त के साथ कनेक्टेड रहेंगे, अगर भगवान की सेवा में जुड़े रहेंगे, तो भौतिक जगत में बहुत सारा कष्ट आएगा, लेकिन आपको हिला नहीं पाएगा. गोवर्धन was not shaken up by the क्या बोलते हैं, lightning, by the effect of the thunderbolt of Indra, and he was still floating on the hand of Krishna and happily seeing Krishna's pastime 7 days 7 nights under Govardhan hill. और इंद्र देख रहे कुछ हो ही नहीं रहा है.
जितने भी पानी है सब कहां चले जा रहे हैं। तो इंद्र बहुत बल प्रयोग करने लगा, और बारिश और बारिश। लेकिन धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इंद्र के शक्ति खत्म होने लगा। और 7 दिन हो गया, इंद्र पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, और इंद्र समझ गया कि मैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर लिया। ये जो छोटा बालक है, ग्वाल बाल है, हाँ, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। इंद्र समझ गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान है, और मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया। तो इंद्र के जितना गर्व था वो चूर चूर हो गया। तो कृष्ण एक्चुअली इंद्र के गर्व को चूर चूर करना चाहते थे। कृष्ण बोल रहे थे, ठीक है, मैंने देवता पूजा करने के लिए बोला है साधारण मनुष्य को, लेकिन वो साधारण मनुष्य के लिए है। तुम मेरे माँ बाप से, मेरे जो गांव वाले हैं, ब्रजवासी, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, उनसे पूजा मांग रहे हैं। तुम्हारा इतना हिम्मत, तुमको पूजा लेना है तो भौतिक जगत में जो भोगवादी लोग हैं उनसे पूजा लो। तो इंद्र का बहुत अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मेरा बहुत बड़ा पोस्ट है, लोग मेरे को सम्मान करते, पूजा करते हैं। और इसलिए कृष्ण जब इंद्र पूजा बंद कर दिया, इंद्र को क्रोध उत्पन्न हुआ, और इंद्र भूल गया कि उनको इंद्र पोस्ट कृष्ण से मिला है। तो उसी प्रकार जब हम लोग, हमारे हृदय में बहुत ही गर्व रहता है, तो हम लोग भक्ति में बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, और तब क्या होता है, भगवान हमारे गर्व को चूर्ण करते हैं। तो इसलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए, हमें दयनीय होना चाहिए। वो शरणागति के और एक लक्षण है। जैसे चैतन्य वो सिखाते, त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना, तीन के जैसा विनयी होना चाहिए, झुकना चाहिए। जितना हम लोग विनयी होंगे उतना हम लोग भक्ति में सुरक्षित रहेंगे। जितना हम लोग गर्वित रहेंगे उतना ही भक्ति में प्राइड इज नेक्स्ट टू, क्या बोलते, फॉल। तो इसलिए हमें हमेशा विनयी होना चाहिए, और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में मिला है वो गुरु की कृपा, कृष्ण की कृपा। तो इसलिए हमें हमेशा कृष्ण की आश्रय में रहना चाहिए, शुद्ध भक्त की आश्रय में रहना चाहिए, हमेशा विनम्रता का अनुशीलन करना चाहिए। अहंकारी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास अच्छा डिग्री है, हमारे पास ज्यादा पैसा है, हम लोग मैं देखने में सुंदर हूं, मेरे उच्च कुल में जन्म हुआ है, अच्छा इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं ज्यादा श्लोक मेमोराइज कर सकता हूं, मैं क्लास की इंचार्ज हूं, मैं कोऑर्डिनेटर हूं, मैं फॉलो अप प्रीचर हूं, मैं काउंसिलर हूं, मैं डिपार्टमेंट हेड हूं। तो इंद्र इस प्रकार अहंकार के वश मदमत्त हो गए, और कृष्ण उनके भक्तों की अहंकार सहन नहीं कर पाते। कृष्ण नहीं चाहते कि उनके भक्त लोग अहंकारी हो, इसलिए इंद्र का गर्व को चूर्ण किया, और इंद्र अपना गलती समझ गए, और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सुरभि गाय के पास जाओ, क्योंकि गाय कृष्ण के बहुत प्रिय है, और गाय के पूंछ पकड़ के तुम कृष्ण के पास जाओ। देखिए इंद्र का हालत क्या हुआ। गाय के पूंछ पकड़ के इंद्र के पास गए, इंद्र भगवान के पास गए, और भगवान के चरणों में अपना मुकुट, अपना हेलमेट रख के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके माफी मांगा कि मैंने मिस्टेक किया, मेरे अपराध माफ कर दीजिए। और कृष्ण बहुत दयालु है,
कृष्ण ने इंद्र का अपराध माफ कर दिया। और फिर इंद्र ने उधर कृष्ण की अभिषेक किया और कृष्ण का नाम हो गया गोविंद इस इंद्र के अभिषेक के बाद। और उधर एक कुंड बन गया, अभिषेक के समय एक कुंड बना कृष्ण के अभिषेक, जिसका नाम है गोविंद कुंड, जो वृंदावन के गोवर्धन के तलाटी में अभी भी है। और जिस तट के जिस कुंड के ऊपर माधवेंद्र पुरी ने भजन किया था और उनको गोपाल जी सपने में आए थे कि मेरा अभिषेक करो, मेरे को जमीन के नीचे रखा गया है, मेरा अभिषेक करो और मेरे लिए चंदन लेके आओ। वो गोविंद कुंड के तट पे हुआ था। वो स्थान अभी भी है ब्रज में, गोवर्धन के तलाठी में गोविंद कुंड, जिसमें जिधर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक किया था इस गोवर्धन लीला के बाद। और वो गोविंद कुंड बना और कृष्ण के नाम हुआ गोविंद। हाँ, इंद्र मतलब गोविंद्र मतलब इंद्र के जो स्वामी है वो है गोविंद। तो इस प्रकार इस गोवर्धन लीला में बहुत सारी शिक्षा है जो हमारे जीवन में हम लोगों को स्मरण करना चाहिए, हमारे जीवन में पालन करना चाहिए। इंद्र के मिस्टेक से शिक्षा लेना चाहिए और हमें विनयी होना चाहिए, दयनीय होना चाहिए, और ब्रजवासियों से शिक्षा लेना चाहिए किस प्रकार देवी देवता का आश्रय नहीं करके कृष्ण की आश्रय लेना चाहिए। देवी देवता को सम्मान करना चाहिए क्योंकि भगवान की सेवक है, लेकिन अगर आप देवी देवता को भगवान के जैसा सम्मान करेंगे तो फिर आप भक्त नहीं है, डेमीगॉड वर्शिपर है। तो हमें ब्रजवासियों से शिक्षा लेना चाहिए किस प्रकार कृष्ण की आश्रय लेना चाहिए, और कृष्ण की आश्रय लेने से कृष्ण जरूर उनके भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसीलिए भक्तों की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना प्रयास और भगवान की कृपा चाहिए। तो अपना प्रयास हमें करना चाहिए, अनुकूल से संकल्प, अनुकूल चीज को संकल्प करना चाहिए, प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल चीज को अवॉइड करना चाहिए, रक्षति इति विश्वासो। हाँ, रक्षति इति विश्वास मतलब कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, विश्वास हमें पालन करना चाहिए हमारे हृदय में। और दैन्यता का पालन करना चाहिए, हमें दैन्य बनने की प्रयास करना चाहिए, हमें विनयी रहना चाहिए। और दो चीज जो है, एक है आत्मनिष्ठ आत्मनिवेदन, और दूसरा है गोप्रीत्य वर्णन तथा भगवान हमारे गोप्ता है, मास्टर है। तो ये दोनों के बारे में दूसरे कभी किसी दिन हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि जय। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।